Okay, so all of you welcome for the orientation of MGFF scholarship. MGFF is Multiples Good Faith Foundation, and we Lighthouse Project we have tie up with that organization for scholarship. So basically, MGFF runs this scholarship, and that we avail this benefit for our mentees. Okay, so uh, what is the aim of this scholarship? To encourage students to pursue higher education. Higher education means 12th standard and above. So they'll support you for your till your graduation. Okay, and this is 100% scholarship. You'll get 100% scholarship from this scholarship. Okay. So assist students who are risk of dropping out due to financial difficulties. Also, there is a criteria for income. Then you need to get ready of your income certificate also. Identifying talented young students from economically challenged backgrounds. So this is all about the scholarship. Okay. Who is eligible for this scholarship? Student must have a minimum of 60% in 8, 9, 10th, 11th and 12th. Okay. So first of all, scholarship is for scholars. Okay. But they have minimum criteria of 60%. And also after getting scholarship, you need to maintain that criteria or your academic performance. This is also the condition. Okay. So, who is eligible for the scholarship? Grade 12 and grade 13 mentees from Lighthouse Project. They are eligible for this scholarship. They should be with like mentor. They should be with like mentoring program or with LHP support group. जो हेलो मेंटीज हेलो हैं जो LHP सपोर्ट ग्रुप में है या फिर मेंटरिंग में है हेलो उन्हीं को ये स्कॉलरशिप ग्रेड 12 और ग्रेड 13 के मेंटीज को मिलेगी और मेंटीज वो रेगुलरली अटेंड्स मेंटरिंग सेशन एंड LHP सेशंस जो रेगुलर हेलो है हेलो। फर्स्ट एम आई क्राइटेरिया ऑडिबल? इज दैट या हिमेश हाँ, भैया एक्चुअली मैंने नाइन्थ में 60% स्कोर नहीं किए थे जहाँ तक मुझे पता है। ज्यादा मिले है ना नहीं नहीं, 60 के नीचे मिले हैं। अच्छा ठीक है दैट वी विल सी यू यू जस्ट नीड टू अप्लाई देन मतलब विल डॉट 59 मिले हैं गेस, क्योंकि तभी मैं बीमार रहता था, लाइक मुझे नहीं था ना तब। ठीक है विल सी यू कैन अप्लाई देन विल सी व्हाट अच्छा वी कैन हाँ डू अबाउट इट ठीक है इट्स अप टू देम बिकॉज they have their own criteria they have their own process हाँ so we can't हाँ। interfere that but we'll see about it yeah ओके। यस ठीक है यस। So mentee who regularly attend mentoring sessions or LHP sessions, ठीक है. Also a mentee who is regularly attending college. ऐसे नहीं होना चाहिए कि कॉलेज में आपका बिल्कुल अटेंडेंस नहीं है वो पूछेंगे आपको अगर अटेंडेंस का प्रूफ तो आपको वो देना पड़ेगा ठीक है तो यू शुड बी रेगुलर इन योर कॉलेज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया ओके the step one of this scholarship will be online form filling that we are going to explain this step in this orientation. Then step two will be the online assessment test. Online assessment test has three tests. उसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करना है आपको वो डायरेक्टली आपको फर्स्ट विल बी द एप्टीट्यूड टेस्ट सेकंड विल बी द इंटरेस्ट टेस्ट एंड थर्ड विल बी द इंटेलिजेंस टेस्ट ठीक है सो ये स्टेप टू होगा Step three will be the interview. It could be in person or virtual. That they will decide. ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ही आपको ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देने मिलेगी असेसमेंट टेस्ट में सिलेक्ट हो जाते हो देन फाइनल राउंड इज इंटरव्यू ठीक है एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड इन इंटरव्यू देन वो होम विजिट करते हैं जो आपने इंफॉर्मेशन फॉर्म में फिलअप की वो सही में है कि नहीं वैसी ही सिचुएशन है कि नहीं आपकी घर की दैट दे विल सी एंड द फाइनल वन द फाइव मेडिकल टेस्ट विल बी देयर एंड you'll get that scholarship okay so what kind of support will the mentee receive from this scholarship so financial assistance for college fees आपके क्लास या ट्यूशन फीस कुछ है उसके लिए भी वो हेल्प करेंगे एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल मटेरियल लाइक स्टेशनरी बुक्स एनीथिंग दैट यू वांट टू बाय दे विल हेल्प यू फॉर दैट also each mentee who got selected for that they received laptop from MGFF ठीक है सो लैपटॉप भी मिलेगा आपको फॉर एजुकेशनल पर्पस ठीक है नॉट फॉर गेमिंग ओके
Please ensure you have following documents ready for the scholarship application. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने मेंशन किए थे वो आप बाद में रेडी कर सकते हो. बर्थ सर्टिफिकेट तो यू माइट बी हैविंग दैट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट. अभी के लिए फॉर्म फिलिंग के लिए योर मार्कशीट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम ग्रेड 8 टू ग्रेड 12. अगर किसी के पास ऐसा है कि मार्कशीट नहीं है, द फॉर्म फिलिंग का डेडलाइन विल बी 24 जनवरी. तो बिफोर 24 जनवरी आपके स्कूल में जाइए और उसकी एक कॉपी ले लीजिए. ठीक है. फ्रॉम ग्रेड 8 टू ग्रेड 12 दोज मार्कशीट्स आर मैंडेटरी. अभी आपको सवाल होगा कि भैया हम तो ग्रेड 12th में हैं. तो आप अगर ग्रेड 12th में हो तो ग्रेड 11 तक की मार्कशीट नेसेसरी है. और अगर आप ग्रेड 13th में हो तो ग्रेड 12th की मार्कशीट भी नेसेसरी है. ओके. देन स्कूल एंड कॉलेज अटेंडेंस रिकॉर्ड फ्रॉम 2019 टू 2023 इफ रिक्वायर्ड. अगर उन्होंने पूछा आपको कि आपको ये मार्क्स, आपको ये रिकॉर्ड देना पड़ेगा, देन यू नीड टू गेट इट डन. इनकम सर्टिफिकेट that you can get from district revenue authority, also from nagar sevak mla's office, that's also absolutely fine. आधार कार्ड, वो तो मैंडेटरी है. आधार कार्ड की कॉपी. ठीक है. होप एवरीवन हैज आधार कार्ड. ओके. Okay. So what is included in the form? So first part will be the instructions. Then section A, where applicant details you need to fill it out. Then section B is student education details. Section C is family income details. We'll go one by one. We are going to fill up that form also right now. So we'll get to understand कि क्या क्या सारी चीजें वहां पे भरनी है. सेक्शन डी में फैमिली डिटेल्स आएंगे. सेक्शन ई अपकमिंग एजुकेशन डिटेल. सेक्शन ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट. सेक्शन जी फ्यूचर करियर पाथ ऑफ द एप्लीकेंट. सेक्शन एच टू बी फिल्ड बाय प्रिंसिपल स्कूल टीचर एनजीओ वर्कर, जो ये सेक्शन है जो हम भरेंगे आपके लिए. सेक्शन आई डिक्लेरेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके. सो सेक्शन ए जो आपको फिलअप करना है, दैट जहां पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिलअप करने हैं और वो करेक्ट फिलअप करने हैं. क्योंकि उसके बाद अगर आपने ये गलत फिलअप कर दिए, उसके बाद वो आप चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है. Also, you need to ensure that applicants have provided the correct email address and contact number. So, आपको जो email address और contact number आप mention करोगे वो correct होना चाहिए, क्योंकि you will receive message as well as email of ARN number, application reference number. और वो application reference number मिलने के बाद ही आप आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो. ओके. सो विल स्टार्ट वन बाय वन. अभी तक यहां तक आपको कुछ सवाल है तो पूछिए, फिर हम आगे जाते हैं फॉर्म फिलिंग के. Okay, Bhaiya, my 8th and 9th standard was in lockdown, so I don't have any report card related to 9th and 8th standard. You can ask Akansha. आकांक्षा स्कूल में बताइए कि मैं ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ. इफ दे कुड गिव यू एनी काइंड ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड और अ लेटर समथिंग, बट दे रिक्वायर समथिंग. ठीक है. रिपोर्ट कार्ड अगर आपको नहीं भी मिला है तो भी कुछ भी ऐसे परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होगा. और वो मिला है, लास्ट टाइम भी जो बच्चों ने अप्लाई किया था उनको भी दिया है स्कूल ने. हेलो हेलो। यस हिमेश. भैया अभी कैसे फिल करना है फॉर्म? हाँ, वो फॉर्म फिलअप का अभी तक कुछ सवाल है क्या? नहीं नहीं, बट बुक्स में लिख के करना है या किससे करना है? व्हाट दैट आई विल बुक एक्सप्लेन. पे लिख। अच्छा अच्छा, ओके। यस. आचल, यू डोंट हैव अटेंडेंस रिकॉर्ड, नो? ठीक है. दैट्स फाइन. इफ इफ इट्स रिक्वायर्ड और उन्होंने अगर पूछा तो ही आपको वो देना है. अभी के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है. ओके सिद्धि, नो वरीज इन दैट. आप बट अभी के अगर लिए फॉर्म फिलिंग कर सकते हो अगर उन्होंने अटेंडेंस का रिकॉर्ड पूछा, इफ रिक्वायर्ड. क्योंकि फर्स्ट ईयर में पूछा था
मतलब फर्स्ट बैच ऑफ एमजीएफएफ में फर्स्ट एंड सेकंड बैच में उन्होंने पूछा था रिकॉर्ड, तो उनको देना पड़ा। और अगर अटेंडेंस रिकॉर्ड आपको पूछा गया तो आपको कॉलेज से लिखवा के लेके आना पड़ेगा, जो भी रिकॉर्ड है आपका अटेंडेंस का। स्कूल का रिकॉर्ड है वो स्कूल देगा, स्कूल के पास होता है वो रिकॉर्ड, वो स्कूल प्रोवाइड करेगा, जो कॉलेज का रिकॉर्ड है वो कॉलेज देगा। Parag, I guess the letter also is fine, right? यस यस, लेटर इज ऑल्सो फाइन। Yeah. स्कूल या कॉलेज से वो लेटर जो भी है, लेटर फॉर्मेट में देंगे या फिर रिकॉर्ड फॉर्मेट में देंगे, वॉट एवर, वो आपको कुछ कुछ कॉलेजेस ने पूरा रिकॉर्ड दिया है, कुछ कॉलेजेस ने वहां पे लिख के दिया कि ये पर्सन का इतना परसेंट अटेंडेंस है। ओके, डन। कैन वी मूव नाउ? यस यस। हाँ, इफ अटेंडेंस इज बिलो 75%, सो तो अगर आपका 75% से अटेंडेंस लो है, सो दैट कॉल एमजीएफएफ विल टेक, बिकॉज दे हैव देयर ओन प्रोसीजर्स। ठीक है, अभी के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है और लास्ट ईयर भी नहीं पूछा था, बट अगर पूछेंगे तो आपको देना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी आर मेंशनिंग। सो यू जस्ट, अभी के लिए यू जस्ट फिल द फॉर्म। So just to add, Parag, यस whatever right now जो पराग भैया जो भी अभी बता रहे हैं, that is what are some of the instructions that we have received from MGFF. Okay, यस so right now we will help you all in ensuring that you are submitting all the documents, you are submitting the form. If you have any doubts, we will help you all in that. लेकिन जो सिलेक्शन का डिसीजन मेकिंग है ना, वो लाइट हाउस के पास, पराग भैया के पास, मेरे पास, किसी के पास भी नहीं होगा। तो उसमें आपको ये इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखे हुए हैं जो नेसेसरी है, उनका उनको गैदर करना आप धीरे धीरे अभी से स्टार्ट करो। लाइक ये मार्कशीट वगैरह नहीं है तो उसको गैदर करना स्टार्ट करो। अटेंडेंस शीट का चलो ठीक है, बाद में पता चलेगा, अगर बाद में उन्होंने मांगा तो हम लाएंगे, ठीक है, तो वी कैन आस्क देम फॉर अ लिटिल मोर टाइम। बट जो डिसीजन होगा, एंड डिसीजन, दैट एवरीथिंग विल बी ऑन एमजीएफएफ। तो उसके रिलेटेड जो भी आपके सवाल भी है ना, वो हम एमजीएफएफ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आप हमें बोल सकते हो, लेकिन डिसीजन इज नॉट बेस्ड ऑन लाइट हाउस। ये आप ध्यान में रखो। इसके लिए मेक योर डॉक्यूमेंट्स एज परफेक्ट एज पॉसिबल। वहां पे कहीं पे भी ऐसा मत होने देना कि कुछ मिसिंग आउट है या कुछ नहीं है अपने पास। ओके, या पर यस यस, यस ओके। डन, ऑल क्लियर? यस Are you all able to see my screen now? यस यस। चलो, Yes, yeah. हाँ, सो विल स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग नाउ। ठीक है, वो एक बार आपने जो सेक्शन ए हमने देखा था, वो आपने अगर फिलअप कर दिया तो यूल गेट दैट दिस नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जैसे मुझे मिला है एमजीएफएफ से। ठीक है, यूल रिसीव दैट नंबर ऑन ईमेल ऑल्सो, ऑन योर एसएमएस ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, अभी हम सारे नहीं पढ़ेंगे, हम आगे जाएंगे। देन आई हैव read the instructions, I am ready to fill out the form. Yes, यहाँ पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट। these are personal details, your gender, prefix, disabilities है क्या कुछ, एड्रेस, एड्रेस आपको प्रॉपर लिखना है। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सिटी, टाउन, वॉट एवर, स्टेट, पिन कोड। अच्छा, दिस वन इज क्रूशियल, प्लीज सिलेक्ट योर एनजीओ। ठीक है, यहाँ पे आपको द लाइट हाउस प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट करना है, जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट से अप्लाई कर रहे हो आप। वहां पे अगर आप लाइट हाउस सिलेक्ट करने मतलब मिस कर देते हो या फिर लाइट हाउस नहीं सिलेक्ट करते हो, सो इट्स नॉट आवर फॉल्ट, हम उसके लिए फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। जस्ट रिमेंबर दैट। सो दिस इज वेरी क्रूशियल कि यहाँ पे द लाइट हाउस प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना इट्स मैंडेटरी। ओके, then Aadhaar card details. You need to fill like last four digits of Aadhaar number. Then you need to upload your Aadhaar card in PDF format, and your PDF maximum file size should be 1 MB. Okay. Yes. Then PAN number. If you have PAN card, then you can add your PAN number also. You can upload your PAN card. Okay. अल्टरनेटिव पर्सन डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपके नेबर,
या फिर रिलेटिव, बट जिसके साथ आपका रेगुलर कांटेक्ट है, आपका फैमिली का, अगर आपके साथ बात नहीं हो पाई तो उस पर्सन को कॉल करके उससे बात हो सकती है। नॉट योर फादर, नॉट फ्रॉम योर फैमिली, नॉट फ्रॉम योर होम। यहाँ पे आपको नेबर का या फिर रिलेटिव का, मोस्ट प्रोबेबली में नेबर का ही आप डालोगे तो बेटर है। उनका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका एड्रेस, ये सारी चीजें डालनी है। नेक्स्ट, ओके, स्टूडेंट एजुकेशन डिटेल्स, नेम ऑफ योर करंट स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वो उस कॉलेज का पूरा नाम डालना है, ठीक है। ऑल्सो एड्रेस ऑफ योर करंट स्कूल एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस वहां पे लिखना है। देन सिटी, देन स्टेट, देन पिन कोड ऑफ योर कॉलेज। ओके, एट स्टैंडर्ड मार्क्स, अभी एट स्टैंडर्ड कौन से ईयर में आपने पास किया वो ईयर यहाँ पे डालना है, मंथ डालना है, ईयर डालना है। ऑल्सो स्टेट बोर्ड से अगर आपने किया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से ही आपने किया होगा, राइट। सो यहाँ पे स्टेट बोर्ड लिखना है। प्लीज सिलेक्ट द स्कोरिंग सिस्टम ऑफ योर एट स्टैंडर्ड मार्क्स, अगर वो मार्क्स भी होंगे या फिर ग्रेड भी होगा, बट यू नीड टू सिलेक्ट परसेंटेज, क्योंकि एक ही ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है परसेंटेज का, ठीक है। यू नीड टू कन्वर्ट योर मार्क्स इनटू परसेंटेज। अभी उतना तो आपको सबको पता है कि परसेंटेज में, मार्क्स को परसेंटेज में कैसे डिवाइड करते हैं, राइट। वो डिवाइड वो आपको ये करना है, कैलकुलेट करना है, एंड वहां पे आपके परसेंटेज लिखने हैं। एट स्टैंडर्ड का मार्कशीट वहां पे अप्लाई, यहाँ पे अपलोड करना है, जिसकी फाइल साइज, पीडीएफ अपलोड करना है जिसकी फाइल साइज 1 MB से कम हो। ओके, अगेन विथ 9 स्टैंडर्ड, ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, यहाँ पे कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर ये नहीं भर पाए आप तो फॉर्म आपका आगे ही नहीं जाएगा। देन 9 स्टैंडर्ड के डिटेल्स आपको मेंशन करने हैं, सेम 10 स्टैंडर्ड के मेंशन करने हैं, ठीक है। 10 स्टैंडर्ड का मार्कशीट वहां पे, 11 स्टैंडर्ड का सेम वैसे ही करना है आपको। ओके, हैव यू अपियर्ड फॉर योर 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस, जो 12th में बच्चे हैं वो नो लिखेंगे, जो 13th में है वो यस लिखेंगे। यस लिखने के बाद, यस आचल, टेल मी। ओके, सो हैव यू अपियर्ड फॉर योर 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, तो वहां पे अगर आप ग्रेड 13 में, सो यू कैन पुट यस। तो यहाँ पे अगेन 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट अपलोड करने के लिए ये ओपन हो जाएगा। अगर आप नो सिलेक्ट करते हो तो कुछ भी ओपन नहीं होगा। ओके, यस, ठीक है। प्लीज अपलोड ऑल मार्कशीट्स ऑफ प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आपने सीए, सीएस, एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम्स आपने दिए हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आप इसमें वो सारे मार्कशीट्स एक ही पीडीएफ में लेके, उसकी मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB होनी चाहिए, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। हेलो अभी यहाँ तक कुछ हेलो भाई। सवाल है तो पूछिए। हाँ, यस, यस हेलो भाई, इमेज, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। अच्छा, आपने एक बोला कि जो नेबर्स है उनका भी हम्म, डिटेल्स चाहिए, तो हाँ, उनका फोन नंबर लगेगा या फिर उनके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, सो सिर्फ उनका कॉन्टेक्ट सिर्फ नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे देखो ना, अच्छा अच्छा ये देखो, नेम ऑफ द अल्टरनेटिव पर्सन और नेबर पर्सन इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट, उनका नाम, अच्छा मोबाइल नंबर ऑफ अल्टरनेटिव पर्सन, उनका एड्रेस, दैट्स इट। अच्छा, उनका ही एड्रेस, ओके। या उनका ही एड्रेस ऑब्वियसली। हाँ, ओके, डन। यस यस। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप, हाँ, सो सेक्शन सी इज फैमिली इनकम डिटेल्स, और यहाँ पे आपको जो सही है डिटेल्स, कुछ भी छुपाना नहीं है, क्योंकि आपको अगर उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट मांगा आपके पास, तो आपको वो देना पड़ेगा, और वहां पे होम विजिट पे भी वो आपको सवाल पूछेंगे सारी चीजें, तो यहाँ पे जो भी लिखोगे वो सही, ट्रू होना चाहिए। ओके, टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग ऑल अर्निंग मेंबर्स, ठीक है। इफ योर फादर इज अर्निंग 10,000, इफ योर मदर इज अर्निंग 5,000, एंड इफ योर ब्रदर इज अर्निंग 5,000, सो यू नीड टू पुट 20,000 है, ठीक है। एनी अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली,
योर, इट कुड बी इंक्लूडिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो भी हो सकता है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके उनको उनका भी कुछ मंथली इनकम है, सो यू नीड टू मेंशन इट यहाँ पे। और अगर पेरेंट्स दोनों का है तो भी, हाँ, दोनों पेरेंट्स भी अर्न करे तो भी मिक्स अप यस मतलब। ऑब्वियसली, हाँ। दोनों का, सबका जितना है। अगर पापा का 12,000 है, मम्मी का 12,000 है, वॉट एवर, वो दोनों आपको मिला के यहाँ पे लिखना है, इन नंबर, इन वर्ड्स, ठीक है। देन टोटल मंथली एक्सपेंस ऑफ द फैमिली, अभी वो अप्रोक्सीमेटली आप आपके फैमिली को पूछ के आप ये लिख सकते हो। अगर 20,000 रुपीज इनकम है तो 20,000 रुपीज खर्चा है, वॉट एवर जो है खर्चा, वो आप लिख सकते हो। ओके, सो सेक्शन डी इज फॉर फैमिली डिटेल्स। हाँ, यहाँ पे आपको आपके फैमिली के डिटेल्स डालने हैं, आपके पापा का नाम, ठीक है, फादर, रिलेशन क्या है, उनकी एज क्या है, आर दे अर्निंग, दिस इंक्लूड्स फार्मिंग, पार्ट टाइम वर्क, एनीथिंग, यस, अर्निंग, व्हाट इज देयर टाइप ऑफ वर्क, if he is driver, if he is working at private company, anything that you need to mention, okay। अभी यहाँ पे लिखा है कि इफ स्टडिंग करिकुलम एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, कॉमर्स, साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, अभी ये कभी एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैं ऐड मेंबर करूंगा, ऐड मेंबर करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा, समझो, गौरांगी दीदी का नाम, शी इज माई सिस्टर, ठीक है। तो उनका मैंने एज यहाँ पे लिखा, आर दे अर्निंग, नो, शी इज स्टडिंग, समझो, इज डूइंग इंजीनियरिंग, ओके, साइंस। अभी अभी एनुअल स्कूल एक्सपेंस और कॉलेज फीस, जो भी उनकी कॉलेज फीस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, कुड बी लाइक 50,000 फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। हाउ मच ऑफ द स्कूल एक्सपेंस आर फंडेड बाय एनजीओ, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एटसेट्रा। अगर आपके भाई बहन को कहीं से भी, आकांक्षा से, गवर्नमेंट से, फ्रीशिप से, कहीं से भी कुछ भी स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वो कितने अमाउंट की मिल रही है। तो मेरी बहन है, समझो गौरांगी, और उनको मिल रही है 20,000 की स्कॉलरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट, सो आई मेंशन इट। अगेन आई नीड टू डू एड मेंबर, वहां पे मेरे मदर के डिटेल्स आएंगे, इफ शी इज नॉट वर्किंग वहां पे नो आएगा। ऐसे सारे मेंबर्स के डिटेल्स आपको ऐड करने हैं, देन यू कैन क्लिक नेक्स्ट। सर नहीं मिलता रहेगा तो क्या लिखने का? हाँ, इफ अगर समझो किसी पेरेंट को अगर नहीं मिलता रहेगा तो फिर क्या लिखने का? नहीं, मैं समझा ही नहीं आप क्या सवाल है आज में। अगर किसी का, बाद में पूछती, बाद में अगर, पूछती। अच्छा ठीक है, ओके If ओके। anyone didn't get scholarship, so what should we write on that topic over that area? In scholarship, you mention 20,000 got. If we didn't receive any scholarship, so what? तो इट शुड बी एनए ब्लैंक, लिख दो। एनए, इट शुड बी ब्लैंक, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फिल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वहां पे वो रेड डॉट नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। So upcoming education plans. So please explain what degree you wish to pursue and why. अभी यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सी डिग्री आप परस्यू करना चाहते हो और क्यों परस्यू करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई एस्पायर टू परस्यू अ बैचलर्स डिग्री इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस बिकॉज ऑफ माई पैशन फॉर साइंस, इट्स पोटेंशियल टू improve human health and how my strengths align with the field's demand. My analytical thinking, problem solving skills, and keen interest in biology and chemistry equip me to excel in drug research and development. I am detail oriented and organized, essential traits for ensuring safety and precision in pharmaceutical application, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वो कन्विंसिंग लिखना है कि ये कोर्स आप क्यों करना चाहते हो और आपके पास वो करने के लिए कौन से स्ट्रेंथ्स है, दैट यू नीड टू राइट इट डाउन इन दिस कॉलम, ठीक है। सो विल सेंड यू दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। सर व्हाट इफ वी हैव नॉट डिसाइडेड येट अबाउट व्हाट वी हैव टू परस्यू, ठीक है। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया है तो अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया है तो आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिखना है बॉस,
You need to mention something here. So you need to decide before form filling. Okay. सर मैं किसी नेबर के साथ बात नहीं करती, अगर नेबर के साथ नहीं बात करते हो तो रिलेटिव्स तो होंगे ना, तो रिलेटिव्स का डाल सकते हो. If the income of any one of is not exact same of every month, for example taxi driver, that's fine. एवरेज लिख सकते हो तुम, एवरेज इनकम क्या है. ओके. Please list down details of upcoming competitive exams, if any, that you are preparing for and provide details of the same. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक अभी 12th के बाद, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, आई वांट टू परस्यू फार्मास्यूटिकल साइंस, सो आई नीड टू गिव एग्जाम लाइक MHT CET, right? So you need to mention name of the exam is MHT CET 2025, field of the study pharmaceutical science, details of formal coaching undertaken. I have taken admission in science classes in Worli, which covers the MHT CET portion as well. Preparation details. I am preparing for this exam alongside my HSC science studies. Tentative exam date is 12th April 2025 and tentative result date is 12th June 2025. ये मैंने approximate सब कुछ लिखा है. You need to mention it properly. ठीक है. Tentative लिखोगे तो भी चलेगा, but you need to mention it. अभी ये डिटेल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये भी सवाल होगा. तो तो ये अगर आपका सवाल है तो आपको अगर ये भी आपका सवाल है तो ये सारे डिटेल्स आपको लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था वहां पे मिलेंगे. ओके. सेक्शन F, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर द एप्लीकेंट. इज देयर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, फ्रेंड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर योर एजुकेशन? ओके. सो यहाँ पे आपको वो लिखना है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपकी फैमिली, आपके कोई फ्रेंड्स आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर योर एजुकेशन, तो वहां पे आपको यस लिखना है. अगर कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो लिखना है. दैट्स इट. ओके. अच्छा, अभी यस अगर आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इफ यस द वैल्यू ऑफ सपोर्ट इन रुपीज पर ईयर, आपको कितना पैसा वो दे रहे हैं साल का. अगर आपको उद्यान शालिनी पैसा दे रही है फॉर योर स्कॉलरशिप, यस कितना पैसा दे रही है. ठीक है. यू नीड टू मेंशन दैट. ओके. आपको पतंग स्कॉलरशिप से पैसा मिल रहा है, यस कितना पैसा मिल रहा है. आकांक्षा ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा दे रही है, कितना पैसा दे रही है, दैट यू नीड टू मेंशन इट. ओके. ऑल्सो स्पेसिफाई टाइप ऑफ सपोर्ट, एजुकेशन फीस, एक्स्ट्रा कोचिंग, बुक्स, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक्सेट्रा. यहाँ पे यू नीड टू स्पेसिफाई वॉट एवर सपोर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. जैसे कि एजुकेशन का फीस दे रही है तो कितना दे रहे हैं, कोचिंग के लिए कुछ पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, बुक्स के लिए कुछ पैसा उन्होंने दिया है साल का या दे रहे हैं, वो कितना मिल रहा है, दैट यू नीड टू मेंशन. ओके. इन दिस सेक्शन करंट फाइनेंशियल सपोर्ट नीडेड पर ईयर, यहाँ पे कितना सपोर्ट आपको मिल मतलब जरूरत है कितने सपोर्ट की. अगर मुझे फार्मास्यूटिकल साइंस करना है तो शायद मुझे साल का 55,000 रिक्वायर्ड है, इंक्लूडिंग मेरा कॉलेज फीस, इंक्लूडिंग माय स्टेशनरी, एवरीथिंग एवरीथिंग. एंड करंट फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव्ड, अभी मुझे 20,000 रुपीज मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा. दैट मीन्स कि उसका शॉर्टफॉल मुझे है 35,000. सो द MGFF विल स्पॉन्सर दैट अमाउंट ओनली. अगर कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर चांसेस नहीं है कि वो मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर, देन यू नीड टू पुट 0 यहाँ पे. करंट फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव्ड इन ईयर, रिसीव्ड इन INR पर ईयर. ओके. Towards which degree will the financial support from Multiples Good Faith Foundation be used? Okay. So I think so only 10 minutes is left. What we can do, ठीक है, I have sent you another link. ठीक है. And you all can join that link after this meeting. ठीक है. If this meeting ends, you can join that link. I have sent you on in chat box of Zoom.
So in next 5 minutes, Parag, do we do that? Yes, in next 5 Because minutes. if this meeting will end, then we will also not have this message. Yes. Yes. ठीक है. So should I continue then till then at least? Okay. ठीक है. Towards which degree will the financial support from Multiples Good Faith Foundation be used? The financial aid provided by MGFF will be used for the following purposes. So यहाँ पे आपको पूरा लिखना है कि आप कौन से पर्पस के लिए वो यूज करने वाले हो और कौन से डिग्री के लिए यूज करने वाले हो और कैसे यूज करने वाले हो. लाइक कोर्स बैचलर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंस, कोर्स फीस approximately 50,000 per year, books and stationery approximately 5,000, laptop which is one time cost is 40,000, and total cost per year for that course, okay, is 95,000 including laptop which is one time cost. I'll send you this. ये कैसे लिखना है क्या लिखना है, I'll send you this so you'll get an idea. Okay, please enter the duration of the degree that you are going to pursue or the support will be required. Sure. So I think so now we'll end this meeting हेलो and हेलो you हेलो all, भैया. yes Himesh, yes tell me. अच्छा, ये इसमें दिया है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 4 years. बट अगर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जा रहे हैं जैसे CA CS के लिए, तो क्या लिखना है? आपको पहले तो CA/CS only, you are not going to pursue only CA and CS, right? हाँ You are going to pursue your graduation also. हाँ हाँ. So you need to mention 4 years only. And for CA and CS, if you are not able to clear it in first attempt, second attempt के लिए they will not support you. MGFF scholarship. अच्छा. Okay? ओके. यस यस. ठीक है. Bhaiya, I have a doubt. Like, as I am applying for university, so my future plan will be a bit different. So I don't like still now the offer letter hasn't came yet. So for now, what should I write? Okay. So you can mention about your future plans, like if it's not like fixed also, but you can mention about that thing, like about your university, what kind of a fees are there. Okay. That you can mention. You want scholarship for I've also applied that for thing, no? For those universities, right? yes. So you can mention it. But what will be the fees? It will be around 9 to 10 lakhs. 9 to 10 9 lakhs to 10, per 9 to year. 10 lakhs Per year. per year. Per year, 9 to 10 lakhs. Then the final decision will be taken by MGFF scholarship only. Okay, they will only take the final decision. They are going to sponsor or not. Yes, Ekta. Ekta. Okay. Okay. So now we'll end this meeting and we'll join another link. Okay. Chalo. You all can immediately join that link. हेलो. Okay. हेलो. Can we start again? Am I audible? यस यू आर. Yes, yes. Chalo. Done. Okay.
So duration of the degree. चलो next. हाँ, future career path of the applicant. So you need to think about your 3 career options, which is mandatory. ठीक है, अगर आपको ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो 3 career options आपके रेडी होने चाहिए. ठीक है, please list down your top 3 career options in order of priority, highest priority first, and why do you believe these career options are right for you? Specify your interest areas and skills. Okay, so ठीक है, यहाँ पे वो इंटरेस्ट एरियाज और स्किल्स लिखने के लिए कहीं पे उन्होंने जगह नहीं दी है, बट विल आस्क देम कि वो कहाँ पे लिखना है. दैट विल गेट बैक टू यू ऑन दैट. बट जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ऑप्शन 1 of mine is bachelor's in pharmaceutical science, option 2 is nursing, and option 3 is bachelor's of science. Okay, मतलब not normal plain BSc. If I put like first option is bachelor's in management studies, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज मैनेजमेंट स्टडीज मैंने एक सिलेक्ट किया, फिर सेकेंड ऑप्शन में आई हैव सिलेक्टेड लाइक एनीथिंग लाइक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और समथिंग लाइक दैट विच इज नॉट रिलेटेबल एट ऑल. अगर ऐसे ऐसे कुछ भी करियर ऑप्शंस आपने सिलेक्ट किए हैं जिसका दूर दूर तक कुछ भी संबंध नहीं है, तो आपका फॉर्म सिलेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे. आर यू गेटिंग इट? सो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 वो अलाइन होने चाहिए आपके इंटरेस्ट एरियाज के साथ, आपके स्किल्स के साथ. कि मैंने फर्स्ट फार्मास्यूटिकल साइंस लिखा है, ठीक है, वहां पे नहीं मिला, आई डू नर्सिंग. कहीं पे भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, देन आई डू बीएससी, विच इज लॉजिकल. सो यू शुड थिंक अबाउट लॉजिकल ऑप्शन, लॉजिकल करियर ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ. ओके, हाँ. फिर यहाँ पे करियर ऑप्शन 1, जो भी स्ट्रीम आपने साइंस, देन प्लीज सिलेक्ट योर फर्स्ट प्रिफर्ड डोमेन. सो दैट इज पैरामेडिकल. वहां पे सारे सारे डोमेन्स हैं यहाँ पे. जब आप फॉर्म ओपन करोगे तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी. फूड इंडस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंसेस है, एग्रीकल्चर है, एविएशन है, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, और जो भी नहीं समझ में आएगा, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, देन पैरामेडिकल, देन यू नीड टू सिलेक्ट योर प्रिफर्ड प्रोफेशन, दैट इज फार्मेसी. ओके, career option 2, again science, paramedical, nursing, and uh, third preferred stream is science, biological sciences, and microbiology. So these 3 career options are still connected. अगर कहीं पे भी ऐसे डायरेक्ट एक ऑप्शन डायरेक्ट विरार एंड एक ऑप्शन डायरेक्ट चर्चगेट होगा विच इज नॉट रिलेटेबल, तो वो भी सोचेंगे कि अरे मतलब ये क्या सोच रहा है, कैसे करेगा वो. ठीक है, सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट लॉजिकली कि आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाए इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. चलो. Hello, hello, hello. Yes, Sir, Avni. can you hear me? Sir, मुझे था question. पहले तो Avni, you're not audible actually. hello. Yes, Yes. So जो family वाला था ना, उसमें we have to write about each and every family you're not audible, Avni. member, right? We are not हाँ, able अभी to अभी hear you. hello. Am I audible? Put it in Hello, on, hello, put it in hello. chat box. Okay, okay. Yes, sir. चलो, we'll move to next section then. Section H, to be filled by principal, school teacher or NGO worker. ठीक है? Parag, Yes. sorry. So, can you just share the link once here again? Which link? That link of this meeting. Link of this meeting that is ongoing. Okay. A wait. few of the mentees, I think, did not copy it and they got disconnected from there. Okay. I'll paste it. Got it. Yeah. Should we stop?
or we'll send them recording, no? No, I think you continue. हाँ, Yeah, you चलो ठीक है. So in section H, we will give you letter, recommendation letter from NGO, which is signed and duly stamped, so that you can upload in this column. ठीक है, तो ये हमारे लिए, आपके लिए कुछ नहीं है. सेक्शन H. ओके. And this is like declaration of authenticity of information. You need to read all of this information. Please confirm if you have uploaded the following mark sheets. 10th का आपने अपलोड किया, yes. 12th का नहीं किया, no. Undergraduate mark sheet, no. Okay. This form must be filled by the applicant, authorized person. I confirm that all information provided in the application is true and all. Whatever, like this is the authenticity of the information. I hereby accept, agree terms and conditions. Also confirm I have read, understood the content provided in this form. Then you need to preview it. पूरा जो भी है, जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी सेक्शन आपने भरे हैं, पूरा फॉर्म आपको प्रीव्यू करना है. एंड देन ओनली you need to submit it. After submitting it, you should receive an email from MGFF. अगर MGFF से आपको email आता है immediately after submitting the form, तब भी आपका फॉर्म सबमिट हुआ ऐसे ये किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा. ओके, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड. अभी जो हिमेश का फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये फॉर्म फिलिंग कैसे होगा, क्या होगा. सो as we said, throughout the process we are going to support you for each and every step. ठीक है, तो now you can take screenshot of the screen. हाँ, आप लाइट हाउस ऑफिस में आ सकते हो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑन दीज डेट्स. ठीक है, यू नीड टू इन्फॉर्म योर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कि मुझे वो एमजीएफएफ स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए आना है. आज ही आपको ये फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, उसके साथ क्या क्या डिटेल्स, आपको जो क्वेश्चंस वहां पे लिखे थे और जो मैंने इंफॉर्मेशन फिलअप की थी, वो इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत वी विल सेंड इट टू यू, सो विल गेट एन आइडिया. तो आप ये स्लॉट्स में से किसी भी स्लॉट पे ऑफिस में आके यू कैन फिल आउट योर एमजीएफएफ स्कॉलरशिप फॉर्म. यू गॉट इट हिमेश नाउ? हाँ हाँ, यस. ओके, डन. तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. ठीक है, कभी आ सकते डॉक्यूमेंट्स हो के क्या. सारे डॉक्यूमेंट्स के सारे फोटो लेके आने हैं या फिर मतलब डॉक्यूमेंट्स ही लेके आने हैं? वो सारे पीडीएफ रेडी करके लेके आने हैं. वो सारी चीजें मैं एक डॉक्यूमेंट बना के आपके ग्रुप्स पे आपको आज आ जाएगा कि क्या क्या रेडी रखना है आपको फॉर्म फिलिंग के लिए. वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू नीड हाँ टू हाँ फिल आउट, हाँ. नो, दैट ऑल्सो यू शुड कीप रेडी. यहाँ पे आके वो इंफॉर्मेशन सर्च नहीं करनी है, घर पे सर्च करके आना है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है 1 घंटे में. ओके ओके. भैया, थैंक यू. यस. व्हाट अबाउट रिपोर्ट कार्ड? लाइक 8th का तो पूरा लॉकडाउन में गया था, प्रमोट कर दिया था हमें. यस. नहीं, बट 9th का एक्चुअली मार्कशीट है? एट 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 का दिया है, आई गेस. 8 का दिया है. नहीं नहीं, 8th का नहीं दिया है, 9th का दिया था. 8th में लॉकडाउन था तो हमें प्रमोट होने का ना मैसेज आया था एक. But हाँ भैया, we ठीक can है, ask लेकिन to हाँ, have बट स्कूल नहीं में नहीं, तो बट कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रहेगा ना. नहीं, बट एक्चुअली जब मैं गया था ना 9th का रिजल्ट लेने, तभी 8th स्टैंडर्ड का रिपोर्ट कार्ड दिया था. मेरे पास तो है. अभी सुनो मेरी बात. If you are not getting that report card, you won't be able to fill out this form, right? So you need to ask Muktangan. Ekta, you are from Elphinstone, right? यप. Yes. So you need to ask Varalakshmi Didi. Didi, I am filling MJFF scholarship form. She knows about MJFF. She'll support you. जहां पे भी हमारा इंटरवेंशन लगेगा, हमारी हेल्प लगेगी, we'll help you. So don't worry about it. They'll give you something at least. They'll give you letter, something. Report card नहीं मिला तो कुछ तो मिलेगा, for sure. Okay, done. Ekta. Yes, Achal, you can ask Anu. Avni, you can ask your question now. Bhaiya, now can you hear me?
Yes, little bit. Tell me. सो भैया पहले तो 11th का जो है ना आई गॉट लेस देन 60 सो इज इट पॉसिबल लाइक कैन आई अप्लाई Yes, yes, you can apply for it. Final decision will be made by uh, MGF. ओके एंड पहले तो आपने बोला था कि हम जितने भी फैमिली मेंबर्स का एक सेक्शन है और उसमें हर एक फैमिली मेंबर का हमें भरना होता है लाइक उनका कितना क्वालिफिकेशन है सो उसमें लाइक व्हाट शुड आई राइट अबाउट माय ब्रदर बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम एनी बोर्ड मतलब उनका अलग बोर्ड होता है NIOS तो मैं पूरा वो ऐसे मेंशन करूँ और मतलब ऐसे Yes, लिखे yes, you need to mention it. ओके So I'll help ओके you. एंड वन मोर थिंग Yes, नेबर कोई नहीं है तो रिलेटिव्स ही उनका लाइक नंबर चलेगा ना चलेगा, absolutely. एंड भैया एक और चीज Yes. जो कोर्स था ना मतलब वहां पर लिखा था आपने कि अलग अलग टाइप के मतलब सब ऐसे लाइन से सब मेंशन करना है और उसमें हमें हमारे कोर्स का कितना हो सकता है फीस वो भी करना है मेंशन पर अभी तो फिलहाल के लिए हर एक कॉलेज का एकदम डिफरेंट डिफरेंट है सो मुझे अभी आगे जाकर कौन सा कॉलेज मिलेगा और उसका पूरा वेरी करता है और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा वेरी करता है बट एवरी कॉलेज का ऐसे बहुत ज्यादा ये है तो फिर मैं वो मतलब अभी लिखना वो इम्पोर्टेंट है 100% लिखना ही पड़ेगा कॉलेज के फीस वगैरह ठीक है. So you can mention average. Average fees. You are going to pursue BMS, right? So BMS के यस लिए जो average fees है ना, that you can mention. ठीक है. They only ओके going to sponsor or they are going to give scholarship for UGC approved institutes. They are not going to finance any kind of a private universities. ठीक है. यस यस गॉट इट UGC approved और गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, उसी के लिए वो फंडिंग करेंगे, नॉट एनी काइंड ऑफ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. ओके Okay. So Jigna Bhaiya from my institute, they have provided me with the loan of around 2 lakhs to do. I have to mention this, and every month 4,000 per month EMI has been paid. This loan is provided for my GNM degree. What is GNM degree, Jigna? जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ठीक है. We will discuss it separately. How you can mention about it. You are in grade 13, ओके no? यस हाँ ठीक है. We'll discuss about it. वो कैसे आपको फिलअप करना है ना? Yes. Hello, am I audible? Yes, you're audible, Divya. Bhai, I wanted to ask that if I give the number of my friend, is it okay? Because we are almost connected, more than neighbors also. Uh, I think so. You can provide number of your relative. That would be better rather than friend. Okay. Okay, but if the address is different, it will be Chalega. okay? Yes, Okay. that's fine. And for the attendance, I can get the attendance sheet and the record as well. But the thing is, I'll have to get a letter from your side that I'm applying for a scholarship, so you need it as a document. That So we will will I get discuss it? about. Okay. Okay. Anything else? Gaurangi, if you would like to add something. No, I think you've covered everything. So, just one thing for everyone. When you are filling this form, like, small things like giving neighbor's phone number or giving somebody's phone number, try and understand why you are doing it. And then you will be able to fill the details better. Like, even the financial details, why they are trying to understand, because सबसे ज्यादा जिसको नीड है और सबसे ज्यादा जो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, वो ऑप्टिमम रिजल्ट वो निकालेंगे. तो इसीलिए जितना हो सके ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन उसमें डाल देना. और ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं. और लाइट हाउस कोऑर्डिनेटर्स विल बी देयर टू गाइड यू ऑन दिस. लेकिन ऐसे लास्ट मिनट तक रुके मत रहना कि अगर पराग भैया ने आपको डेडलाइन दिया है 20 जनवरी का, 21 जनवरी 24th. का, तो 24th Jan. हाँ 24 दिया है, तो आप 23rd को आके पूछ रहे हो दीदी को या भैया को कि मैं ऑफिस में आऊं क्या, है ना? सो राइट नाउ ओनली एज सुन एज यू विल रिसीव द फॉर्म्स, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट एटलीस्ट एक्सेसिंग इट.
I think rest everything you have covered, Parag. I don't have anything to share much. Yes. And also, Hello. before coming to Lighthouse project, you need to inform your respective coordinator that I'm coming on 10th January. नहीं तो यहाँ पे भैया ने वो स्केड्यूल बना के दिया है तो कब वो स्केड्यूल पे मैं आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी समवन टू हेल्प यू राइट इन ऑफिस. अगर कोई नहीं रहा तो आप क्या करोगे? यस, हिमेश. Yeah, someone to help you, plus laptops, resources have to be there. यस. Hello, भैया. यस, हिमेश. हाँ, तो I wanted to ask that how many documents are needed? So I'll send you the minimum. list of documents. ठीक है? Okay, Whatever okay, documents are okay, required for form filling and whatever information you need to gather or you need to prepare. ठीक है? That I'll share it with okay. you along with form today itself. Hmm. Okay? Along Okay, with the form link. So you'll get an idea. okay, ठीक है? okay, If okay. you want to do it on your own, if you want to fill it out at your home, first inform us that I'm going to fill it at my home only. So I just need that section H wala जो MGO का letter है, that I need. So just inform us prior, then only we'll be able to plan it out. Done? ठीक है. Yes. ओके. अभी फॉर्म फिलिंग होने के बाद आफ्टर योर ग्रेड 12th, ठीक है, जो भी ग्रेड 12th की आपकी एग्जाम खत्म होने के बाद आगे की जो प्रोसीजर है, लाइक असेसमेंट टेस्ट, इंटरव्यू, दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड. सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्म फिलिंग और उसके बाकी के जो बाद की जो डिटेल्स है वो जब एमजीएफएफ से हमारे हमारे पास आएंगे, सो विल शेयर इट विथ यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेड 12 एग्जाम्स. ठीक है? एंड रॉक योर बोर्ड्स. Thank you so much, भैया. All the best. ऑल द बेस्ट. चलो, Thank you. बाय एवरीवन. हैव अ नाइस डे. थैंक यू, बाय. Bye, Bye. everyone. Thank you so much. Bye, भैया. Thank Thank you. you. Bye, भैया. Thank you. बाय बाय. Bye, Achal. Bye, bye.